precious lives have been lost. Our Honorable Chief Minister of Assam, who is like an elder brother to me, and myself, we decided that we need to do something about this. We decided that yes, this may be a very, very complex problem. There may be a lot of emotions, but it is our duty as leaders of the states to try and find a way forward. If we don't try, if we don't move forward, we will be failing in our responsibility that you, the people of Assam and Meghalaya, have bestowed on both of us. And with this sense of responsibility and commitment that we are here today, as a goodwill gesture, as a confidence-building measure, to tell the people of this area that both the governments of Assam and the governments of Meghalaya are committed to finding a solution, an amicable and a respectful solution to this very, very long pending demand or long pending issue that has caused large amount of suffering to the people of these areas. Ani ka sarar pingrang, ang ating tang mancha, ya salaw ya sumayna, ang ano ko pa isol ko nga, matel sina kusyo nga. Ang ating ni Assam ni Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma ko ba nga matela? May na daalo, Anchini Assam aro Meghalaya border ni issue ko. Balsi sotpris kuna bat play. Yako resolve ka na matjaha. Aro yani asel. Ya area o songdong acha ingpa mandirang. Ajak jatung jamaina. Nepalirang jamaina. Khasirang jamaina. Ba je jat ni bang kan. Ya border dispute ni sel bakan in kaniko matnaha. Jen salo Dr. Himanta Biswa Sarma Assam ni Chief Minister ni kam ko jakor aha. Singa meeting ka emang. Ansing ya dispute pa border problem ko ansing resolve ka na nang gain. Ane singa sakanian sanchiha. Maina ruuta somenan. Ya eri ni mandirang duk ko matnaha, development ko matjaha, aro bakan in kaninang ko chagrong na nang jok. Iko aganon, singa plug problem nang ko, salsa ba salgrini gisepo, ba jasa ni gisepo singa resolve ka naman gen, ani akan jenga. Andi ba singa kam nang ko apat singat naskinga. Riyang ka pa sumay rango, gapan Chief Minister rang, bisong ka nga chon na kadong ja. Ande ba meeting ka Guwahati o Shillong o gronge status quo ko maintain ka na decision ko aya. Ande ba angni sanche da yan skang pa chang. Ya state ke ganini Chief Minister rang. Ya bi aponari by direct public ko gronge area area ni kanirang ko ma siye makang si ko mai ki resolve ka naman gen. Singa da alo steps sang kur ainga. Uniga man nga sa Thai Assam ni Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ko ba ang gisika atong gamagchin ang amatelas ka. दोस्तों आज एक ऐतिहासिक दिन है और आज इस दिन में मेरे हिसाब से और जितना मुझे याद है
कि दोनों जो मेघालय और आसाम के मुख्यमंत्री गुवाहाटी में, शिलोंग में बैठकर बॉर्डर इश्यू के बारे में डिस्कस करते थे और अंत में यही डिसीजन होता था कि हम लोग स्टेटस को मेंटेन करेंगे। लेकिन 50 साल होने वाले हैं और इतने सालों से यहां पे रहने वाले लोगों को दुख, दर्द और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इसलिए असम के मुख्यमंत्री जी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने और मैंने यह फैसला किया कि हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग इस इशू को आगे ले जाकर कहीं पे कोई तो समाधान होगा। अगर हम शिलोंग, गुवाहाटी में बैठकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। हमें अलग अलग एरियाज में जाकर लोगों के दुख दर्द को देखना होगा, उसे समझना होगा और इस बॉर्डर इश्यू का कोई ना कोई समाधान हमें निकालना होगा। यह सोच से आज डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और मैं और हमारे मंत्रीगण और हमारे ऑफिसर्स आज सभी यहां पे लंगपी पे आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग जहां पे इश्यू है वहां आकर लोगों की समस्या को समझे और उसे समझकर ग्राउंड रियलिटी को देखकर हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। इस मामले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि इसे हम लोग आज ही रिजॉल्व कर देंगे या कल ही या 1 महीने के अंदर, यह शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने यह ठान लिया है कि कुछ भी हो हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। शायद हम लोग 100% हम लोग रिजॉल्व ना कर पाए, कोशिश यही है कि करें, शायद ना कर पाए, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक कोशिश रहेगी क्योंकि आज मेघालय और असम के लोगों ने इसी उम्मीद से डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है। मेघालय के पब्लिक ने हमारी एमडीए सरकार को बहुमत दिया है इसी सोच और इसी उम्मीद से कि ये दोनों सरकारें हमारे ये लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करके हमारे इस एरिया में शांति और प्रगति लेके आएंगे। और इसी सोच से दोस्तों आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमारी बातचीत हुई, हम लोगों ने 6 एरियाज देखे हैं जहां हम लोग काम करेंगे 12 में से, और फर्स्ट फेज में लंगपी एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी और मैं यहां आए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज पब्लिक को दें, एक मैसेज दे कि हम लोग एक अच्छी सोच से हम लोग एक साथ काम करने की सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इस सोच से हम लोग दोनों यहां पे आज आए हैं। और इस बातचीत में यह भी डिस्कस हुआ है कि अगर हम लोग हमारे पब्लिक को साथ लेकर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेकर, अफसर लोगों को साथ लेकर, हमारे कम से कम जो सेंट्रल डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, रास्ते हैं, बिजली है, पानी है, हजार करोड़ की स्कीम यहां पे आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस है उसकी वजह से पब्लिक को ये सेंट्रल स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा कि अगर डीसीज, चीफ सेक्रेटरीज, एमडीसीज, एमएलए साथ बैठकर ये स्कीम सेंट्रल स्कीम है, हां शायद ये मेघालय इंप्लीमेंट कर रहा है लेकिन ये पब्लिक की भलाई के लिए है, इसे करने दो। ये स्कीम है पानी का, हो सकता है कि असम गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा हो, लेकिन भारत सरकार का स्कीम है, तो पब्लिक के भलाई के लिए क्या हम ये सेंट्रल स्कीम्स को हम लोग अलाउ कर सकते हैं। इस सोच से मैं चाहूंगा कि, और पब्लिक से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी इस सोच से आगे बढ़िए,
ताकि डेवलपमेंट हमारे एरिया में न रुके और पब्लिक को कोई भी नुकसान न हो। तो मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उनकी पूरी कैबिनेट आज बहुत जोरों से इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रही है। मेघालय सरकार के हमारे मंत्रीगण भी दिन रात आज इस इशू को लेकर काम कर रहे हैं ताकि इस एरिया और जहां जहां हमारे डिफरेंसेस हैं उन एरियाज में हम लोग कोई सोल्यूशन लेके आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों एक बार फिर हमारे सीएम साहब आसाम के डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और आसाम सरकार के सभी मंत्रीगण और सभी अफसरों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। मेघालय गवर्नमेंट के हमारे सभी मंत्रीगण, सारे एमएलएज और सारे अफसर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और आप सबको भी कि आप लोगों ने अपना समय लेकर आप इस मीटिंग में आए, इसके लिए आप सबको भी एक बार फिर मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। So with these few words, I once again thank all the concerned officials and more importantly the public that has come here, and once again would like to urge each and every one of you that we need to work together to find an amicable solution. This is not a simple task. This is not an easy task. But I keep telling the people in Meghalaya that it is this government in Meghalaya and the government led by Dr. Hemanta Biswa Sarma in Assam that has dared to take this issue up. No other government had dared to take this issue up because they were worried about the political consequences. But we are not here to think about the political consequences of what we do or don't do. But we are here to ensure that the difficulties that our people are facing, the challenges that our people face, we as responsible leaders would want to find a solution to this. And therefore, even if this is a very, very important and very difficult challenge, we have dared to take this up. And with all your blessings, I am sure that we will be able to amicably find a solution to the long pending border dispute between the two states. With these few words, thank you all. May God bless each and every one of you. Kublai Shibun, Mathela, thank you, Dhanyavad, and Jai Hind.